Good evening, everyone. Welcome to the next session of our current affairs series. Today, we're going to deal with a mission which is called as Jal Jeevan Mission, launched by the central government way back in 2019. We're going to discuss various facts, various achievements, what are the significance of this mission, and what are the developments that we have reached in 2025 since the launch of this mission. First of all, we'll start with the newspaper headline or what is the news in newspaper about this mission. It is given that Central has appointed 100 teams or these called as nodal teams for nodal officers for the ground inspection of the schemes, different schemes which has been launched under the Jal Jeevan mission. These teams will going to inspect that the fund that has been allotted by the central government is being used properly or not. So let's get started with the Jal Jeevan mission. When it was launched, this mission was launched way back in 2019 on 15th of August by our Prime Minister. So these are some facts which you will going to use in prelims examination also, and these are the facts which will be going to use in mains examination also. I hope it is very clear to you that how to use these facts in our examination. ठीक है? So ministry involved is Ministry of Jal Shakti. Second aim क्या थी इसकी? To provide tap water टू एवरी रूरल हाउस होल्ड. सिंपल सी बात है. और इसका जो टारगेट था वो टारगेट कब का था टैप वाटर कनेक्शन का? इट वाज द टारगेट ऑफ 2024. बट दिस टारगेट इज नॉट बीन कंप्लीटेड. 100% कंप्लीट इसका क्या है? नहीं हुआ है अभी तक. This is 2025 or 100% a water connection in whole country we cannot see that. There are some states which have reached this targets of 100% tap water connection, but every state who have achieved this milestone is not true. So there are still hope, there is still development and initiative required in this Jal Jeevan mission. What does it emphasizes? Along with the connection of tap water, this whole mission emphasizes on empowering women and ensuring future generation to have access to clean water. देखो ओवरऑल क्या काम चल रहा है. आपके घर में नल लगवाना ये जल जीवन मिशन का काम था. टैप वाटर होना चाहिए प्रॉपरली सप्लाई के साथ. लेकिन अलोंग विद दैट इस जल जीवन मिशन के अंदर बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चलती हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड और सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड भी है. मीन्स एक साइड आपका एम्पावरमेंट भी होगा और एक क्लीन एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं, दोज स्कीम्स आर ऑल अंडर जल जीवन मिशन स्कीम्स. नेक्स्ट, व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स? इसके ऑब्जेक्टिव से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इन विच डायमेंशन दिस मिशन इज वर्किंग प्रॉपरली. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव राइट अबाउट एम्पावरमेंट. Empowerment is the first dimension, means empowerment. Mainly this empowerment is focused on women empowerment. How women empowerment? You had seen that कि in Rajasthan or the drought prone areas there was a documentary which had come in National Geographic or Discovery Channel called Water Wives. Means water wives. Have you heard these terms? ये क्या होती थी? एक गांव में जहां पर बहुत ज्यादा सूखा या क्या कह सकते हैं बहुत टाइम से पानी नहीं गिरता है, एकदम बिल्कुल हालात ऐसे होते हैं कि एक कुआं तक की कंडीशन नहीं होती. मोस्टली राजस्थान के जो एक्सट्रीम डेजर्ट एरिया में है उस टाइप की जो कंडीशन होती थी. तो उसमें लोग क्या करते थे कि सिर्फ जो शादियां हैं मल्टीपल मैरिजेस करते थे सो दैट न्यू गर्ल और न्यू फीमेल विल बी एलिजिबल इनफ, और क्या कहना चाहिए कि वो इतनी स्ट्रांग इनफ होनी चाहिए कि वो दूर तक पानी लाने के लिए सक्षम हो. तो इन्हें क्या कहा जाता था? वाटर वाइफ्स. मतलब शादी किस लिए की जा रही है कि आपका काम है सुबह उठ के बहुत सारे घड़े वगैरह लेके पानी लेकर आना है और फिर अपने घर तक लेकर आना था. मतलब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या था? पानी भरने का. तो इसीलिए वुमेन के एम्पावरमेंट में टैप वाटर कनेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आपके घर में ही पानी पहुंचा दिया गया है तो वुमेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम लोगों ने एक क्या कहना चाहिए उन पे डिवोट कर दिया था, उस काम से उनको मुक्ति मिल गई है और उस काम के अलावा अब उनकी दूसरी चीजों में वो फोकस कर सकती हैं. सो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. वाटर क्वालिटी. आपकी वाटर क्वालिटी इंक्रीज होनी चाहिए इस मिशन के अंदर. जितने भी ग्रे वाटर्स हैं फैक्ट्री से निकल रहे हैं उनको प्योरीफाई करके आप निकालेंगे. जो हमारी जमुना है, गंगा है, ये सब भी इस पर्पस से जितनी हमारी रिवर्स है उनको भी क्लीनिंग करने का काम चला जा रहा है.
फिर सोर्स सस्टेनेबिलिटी मीन्स जिस सोर्स का आप यूज कर रहे हैं वाटर में सस्टेनेबल होना चाहिए. यू कैन नॉट एक्सप्लॉइट दिस सोर्स अगेन एंड अगेन एंड टेक द वाटर. नेक्स्ट कम्युनिटी एंगेजमेंट. इस मिशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है, जैसे कि हमारा एक स्कीम चालू हुई थी अटल भूजल योजना. ठीक है, अटल भूजल योजना. This yojana is also under for the water conservation. It has been started in बुंदेलखंड region. ठीक है, हमारे जो बुंदेलखंड रीजन है इसको हम लोग एक क्या कहना चाहिए, ड्रॉट प्रोन एरिया कहा जाता है. तो इसमें क्या करता है, कम्युनिटी से के साथ मिलकर आपको तालाब जो बनाने का या कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया था. ठीक है, तो कम्युनिटी एंगेजमेंट. फिर टैप वाटर कनेक्शन, वो तो प्राइम ऑब्जेक्टिव था इसका. फिर फोकस ऑन फ्यूचर जनरेशन. सीधी सी बात है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड फ्रेश वाटर अवेबिलिटीज है, यू हैव टू कंजर्व दोज अवेबिलिटीज. सो फॉर दिस you have to start you adopt the methods like water conservation, rainwater harvesting. All these methods या focus in all these methods had been started under Jal Jeevan Mission schemes. Or next thing, employment generation. How employment generation has been important? Because in the community development program Atal Bhujal Yojana, all these things you have to reconstruct or revive all the water resources which are available in your villages or cities. So this will provide employment to normal under Manrega schemes also. And by adopting various water conservation and water harvesting methods, number of youths are employed in all these activities. So this is the holistic purpose of Jal Jeevan Mission. समझ रहे हैं आप, एक जल से कितने लोगों का फायदा हो रहा है, आप इस चीज को आप देखिए. मतलब छोटा सा एक जो बूंद है, एक बूंद के आने के लिए घर में जो देखते हैं ना कि नल से पानी आया, उस पानी के आने में इतनी सारी चीजों का ध्यान रखा गया है. ठीक है, यू कैन सी दैट कि क्वालिटी एश्योरेंस और मॉनिटरिंग पे भी हमेशा ध्यान दिया गया है. आई होप दिस पिक्चर इज नॉट प्रॉपर्ली अवेलेबल, बट overall in this picture you can see that it can be downloaded from PIB websites very easily. In this picture the quality of water is also mentioned, means पूरा का पूरा ध्यान रखा गया है कि वाटर की जो क्वालिटी हो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो. आप वाटर को पॉल्यूट नहीं करेंगे, क्वालिटी वाटर लोगों को प्रोवाइड करेंगे. दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस जल जीवन मिशन. नेक्स्ट की अचीवमेंट्स. अब ये जो फैक्ट्स है आप अपनी आंसर राइटिंग में जल जीवन मिशन ने कितना ज्यादा अचीव किया है, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस और क्या क्या फायदे हुए हैं, उसमें हम इस फैक्ट्स को यूज कर सकते हैं. जैसे कि रैपिड एक्सपेंशन ऑफ वाटर कनेक्शन, कितना कनेक्शन हुआ है वाटर का, जो 3.23 करोड़ था पहले, वो आज 15 करोड़ लोगों के पास, रूरल फैमिलीज के पास वाटर कनेक्शन हो गया. मतलब 3.23 से 15 करोड़ मींस अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स हमारे पास जो वाटर कनेक्शन है दैट आर प्रेजेंटली इन आवर रूरल एरियाज. तो दिस डाटा इज फ्रॉम जनवरी 2025 का जो ये है उसका डेटा है. मींस आज की डेट में हमारे पास 15 करोड़ रूट टैप वाटर कनेक्शन है. फिर प्रोग्रेस टुवर्ड्स हर घर जल. हर घर जल का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें 189 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या हो चुका है, आपके हर जल गल हर घर जल के अंतर्गत आपके पास वाटर अवेलेबिलिटी प्रोवाइड की जा चुकी है. और 100% जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट जितनी भी, सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं, जितने भी स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, सभी स्टेट्स में तो नहीं पहुंचा है, लेकिन 11 स्टेट्स एंड यूटीज में प्रॉपरली क्या है आपका 100% दे हैव अचीव द टारगेट ऑफ 100% कंप्लीशन. इसमें आपने देखा होगा गोवा का सबसे पहले नाम आता है. ठीक है, अब हमारे एमपी की भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन्होंने भी 100% टैप वाटर कनेक्शन पे काम कर दिया गया है. जैसे कि आप कमेंट बॉक्स में नाम बताइए. फिर हमारा एक इंदौर जो डिस्ट्रिक्ट था उसको क्या बोला गया था, इंदौर डिस्ट्रिक्ट को क्या बोला गया था, फर्स्ट वाटर प्लस सिटी. इंदौर को फर्स्ट वाटर प्लस सिटी बोला गया था. इसके साथ ही साथ अगर हम अपने एमपी की बात करें तो एमपी में रिसेंटली एक स्कीम चल रही है जल गंगा संवर्धन अभियान. ठीक है, किसी को नॉलेज है इसके बारे में, नहीं होगी. ठीक है, एमपी में एक स्कीम चल रही है जल गंगा संवर्धन स्कीम. आपने कई पैम्फलेट्स वगैरह देखे होंगे. ये मार्च से स्टार्ट हुई है, जून एंड तक चलेगी. इसका फोकस सिर्फ यही है कि आपके एरिया में, आपके डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी
वाटर फैसिलिटीज हैं या ग्राउंड वाटर, कोई नदी है, कोई तालाब है, कोई कुआं है, इन सारे को रिवाइव करना है। इन सब में इस कंडीशन तक लेकर आना है कि कल को जब हमारा मॉनसून सीजन आएंगे तो ये सारी चीजें क्या हो, वापस फिल हो जाए। इनकी साफ सफाई करना, इनको रिनोवेट करना, ये सारी स्कीम किसके चल रही है, जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत पूरे स्टेट में ये स्कीम चल रही है। हर डिस्ट्रिक्ट को ये अलॉट किया गया है कि आपके पास जितनी भी वाटर रिसोर्सेज है, चाहे बावड़ी हो, कुछ भी हो, आप उसको प्रॉपरली क्लीन करिए, उसको मेंटेन करिए और वाटर फैसिलिटीज को प्रोवाइड करिए। ठीक है, तो दिस आल्सो यू कैन ऐड योर इन योर एमपी स्कीम्स, और एमपी स्कीम का वाटर कंजर्वेशन के डेटा में आप इन्हें यूज कर सकते हैं। ओवरऑल अब देखेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या है, अचीविंग द जेजीएम्स गोल विल सेव ओवर 5.5 करोड़ आवर्स ऑफ प्राइमरी डेली प्राइमरी वुमेन अदरवाइज स्पेंड कलेक्टिवली वाटर। मैंने जो आपको शुरुआत में बताया वाटर वाइब्स का कॉन्सेप्ट, अगर जल जीवन मिशन बिकम प्योरली सक्सेसफुल तो 5.5 करोड़ आवर्स, समझ रहे हैं, इतना घंटा हम किसका बता रहे हैं, इन वुमेन का, जो ओवरऑल कलेक्टिवली वाटर कलेक्ट करने पे फोकस करती थी। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन बाय WHO। नेक्स्ट, प्रिवेंट अर्ली 4 लाख डेथ्स फ्रॉम डायरिया डिसीजेस। आपको भी पता है जो जो वाटर डर्टी वाटर्स होते हैं उनसे वाटर बोर्न डिसीजेस, डायरिया डिसीज होती हैं। तो इतने नंबर की डिसीज को आप क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। फिर रिड्यूस मोर्टेलिटी अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 नियरली 30%। कितने परसेंट मोर्टेलिटी को कम कर सकते हैं आप, अंडर 5 की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, IMR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको आप 30% तक कम कर सकते हैं अगर आप क्लीन एंड प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट में जनरेट 59.9 लाख डायरेक्ट एंड 2.2 करोड़ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पर ईयर। देखिए, एम्प्लॉयमेंट का डेटा हो गया, हेल्थ से रिलेटेड डेटा हो गया ये दो, और एक वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड डेटा हो गया। मींस दीज डेटा यू कैन ऐड इन ऑल योर टॉपिक्स रिलेटेड टू, फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पावरमेंट, ओके, एम्पावरमेंट का डाटा डाल सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड दो डेटा हो गए आपके पास, और एक डेटा आपका किससे रिलेटेड हो गया, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो गया। तो किसी भी आंसर में आप इस चीज को ऐड कर सकते हैं। और वाटर से रिलेटेड एक टैप वाटर कनेक्शन और वाटर कंजर्वेशन करने से आपको कितने एरियाज में फायदे हो रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, और अपने किसी भी टॉपिक में, चाहे आप इकोनॉमी के टॉपिक में हो या वाटर कंजर्वेशन के टॉपिक में हो, उसमें इसको ऐड करना है और हमारे आंसर राइटिंग में यूज करना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर द डे करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट सेशन में हम लेकर आते हैं न्यू टॉपिक के साथ, और पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर पे नजर बनाए रखिए। जो जो चीज न्यूज़पेपर में आ रही है, 2025 का भी मेंस पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन इसका मतलब नहीं है वी विल टेक अ बैक सीट। हमें हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है और बहुत तरीके से करनी है कि जो भी प्रॉब्लम्स या जो चीज ड्रॉप लैक हमारे अभी तक हो रहा था, हम उसको कवर नहीं कर पा रहे थे और चीज को एनरिच नहीं कर पा रहे थे हमारे आंसर राइटिंग को, तो दिस इज अ गोल्डन चांस स्पेसिफिकली फॉर द बिगिनर्स हु आर स्ट्रगलिंग इन आंसर राइटिंग। तो इन चीज को ऐड करिए और थोड़ा सा समझने पे फोकस करिए। थैंक यू सो मच।